آمین۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا اور درود اور سلام کے بعد میں آپ کے سامنے اپنے اس جمعہ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ موضوع سمجھ لیجئے، اس کے بعد پورا خطبہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے عید میلاد النبی کی حقیقت، تاریخی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے۔ اگر تاریخی لحاظ سے عید میلاد النبی کو سمجھنا ہے تو اسے دو طریقے سے سمجھیں۔ پہلا یہ کہ کیا 12 ربیع الاول جو تاریخ عید میلاد النبی کے نام پر فکس اور مقرر کیا ہے امت نے، کیا واقعی 12 ربیع الاول ہے؟ یہ ایک تاریخ کی حیثیت۔ اور دوسری حیثیت اس طریقے سے کہ کیا اس کی تاریخ، اس کے ابتدا کی تاریخ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے یا اس کی تاریخ بعد سے ملتی ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا سوال ہے، کسی تاریخ دان نے، کسی مورخ نے فکس اور مقرر طور پر 12 ربیع الاول کو ہرگز نہیں بتایا ہے، بلکہ اکثر جو مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے، ان میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض نے 8 کو کہا، بعض نے 2 ربیع الاول کو کہا، بعض نے 10 ربیع الاول کو کہا، بعض نے 9 ربیع الاول کو کہا، اور بعض اہل سیر نے تو رمضان المبارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتائی ہے۔ جہاں تک محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی بات ہے، ان کی سیرت کے عنوان پر ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شمسی اور قمری، سورج کے نکلنے، غروب ہونے اور چاند کے نکلنے اور چاند کے ختم ہونے کا اگر لحاظ کیا جائے تو یہ پوری دنیا کی تاریخ نکلتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش تسلیم کرنا یہ زیادہ قریب ہے صحیح کے، لیکن مقرر نہیں۔ نہ 12 ربیع الاول مقرر، نہ 8 ربیع الاول مقرر، نہ 2 ربیع الاول مقرر، نہ 10 ربیع الاول مقرر، نہ 9 ربیع الاول مقرر۔ مختلف اس کے اقوال ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو پھر ہماری اس جو امت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا امت، اس نے 12 ربیع الاول کو مقرر کر کے عید میلاد النبی کرنے کا ثبوت کہاں سے حاصل کیا؟ جبکہ تاریخ لکھنے والوں نے اس کو مقرر نہیں کیا ہے، ہم اور آپ اسے مقرر کر کے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اللہ کی پناہ! یہ تو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے متعلق بات۔ جہاں تک اس کے شروع کرنے کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں اسے ہرگز نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک زندہ رہے، آپ نے نہیں منایا ہے، صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے، تابعین نے نہیں منایا ہے، تبع تابعین نے نہیں منایا ہے، ائمہ و محدثین نے نہیں منایا ہے، مفسرین و محققین نے نہیں منایا ہے، علماء اور مفتیان کرام نے نہیں منایا ہے۔ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر 600 سال تک اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت ملتا ہی نہیں ہے۔ پہلی صدی میں عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، دوسری صدی میں عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، تیسری صدی میں عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، چوتھی صدی میں عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، 5ویں صدی میں بھی عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، 6ٹھی صدی ہجری میں نبی کے ہجرت کرنے کے بعد لے کر 600 سال کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے
इसे जिसने शुरू किया है उसका नाम मलिक मुजफ्फरुद्दीन था। इसकी वफ़ात 630 हिजरी में हुई है। अपनी वफ़ात से तकरीबन जब ये बादशाह हुआ तो 25 या 26-27 साल पहले इसने शुरू किया है। मलिक मुजफ्फरुद्दीन इतना अय्याश बादशाह था, इतना रंग वाला बादशाह था, खेल कूद और डांस और ये उछल कूद, तमाशे, गाने बजाने, इसका ये शौकीन था। मलिक मुजफ्फरुद्दीन अरबल नामी एक इलाके में ये बादशाह था। मोसल का एक इलाका है अरबल, वहाँ ये बादशाह था। और उसने सबसे पहले 602 या 604 हिजरी में इसको शुरू किया है। बेदरीग पैसा खर्चा करता था इस मामले में। और जहाँ तक आज भी ईद मिलादुन नबी के मामले में ये सियासतदान जो बैकअप बन के खड़े होते हैं, ये आज की बात नहीं है, पहले ही से है। उस वक्त भी सियासतदानों ने इसके पीछे खड़े होकर इसको फरोग दिया, इसकी परवरिश की है। और आज भी ईद मिलादुन नबी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो सिर्फ इस वजह से कि कोई गली का काउंसलर है, कोई मेंबर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई और बड़ा भी क्यों न हो, इसके पीछे खड़े होकर बेदरीग मालो दौलत खर्च कर दे। और नौजवान पट्टे बेचारे, खाने पीने को उन्हें मिल जाए तो इससे बड़ी दौलत उनको क्या नसीब होगी। अब जुलूस निकाला जाता है। तो सबसे पहले किसने शुरू किया? मलिक मुजफ्फरुद्दीन, ये फातिमी बादशाह था। तो अगर इसकी तारीख शुरुआत की ली जाए तो 600 साल तक इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है। जब इसका सबूत नहीं मिलता है तो ये दीन कैसे क्या हो सकता है। मैं इख्तिलाफ की गरज से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो दिल में दीन के जज्बे के साथ इतना सा भी इसके बारे में हुस्ने ज़न ना रखे कि मैं कर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन कहीं ये ईद ना हो जाए, ये दीन का काम ना हो जाए। ऐसे अय्याश बादशाह ने इसे शुरू किया है कि इसकी अय्याशी से उस दौर के लोग भी मुतनफिर थे, उस दौर के लोग भी बेजार थे। नबी के नाम पर ईद मनाना एक अय्याश ने शुरू किया है और उसकी अय्याशी ही इसे इजाजत दी है। आज अगर दीन का नाम लेकर उसे लोग कर रहे हैं तो ये दीन है क्या अय्याशी परस्ती है? सीधी बात है, फैसला आपके हाथ में है। पता ये चला कि अगर तारीखी नुक्ते नज़र से हम इसे देखेंगे दो तरीके से, तो दोनों तरीके से ये दीन नहीं बन सकता है। पहला ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख 12 मुकर्ररा तौर पर हरगिज़ नहीं है, तो 12 किसने मुकर्रर की है? दूसरा ये कि इसकी तारीख इब्तदा करने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नहीं है, तो फिर ये दीन कैसे क्या हो सकता है? पता ये चला कि ये दरमियान में आने वाली चीज़ है। और दीन इतना कमज़ोर नहीं है कि उसके दरमियान में से कहीं से भी कुछ भी आ जाए। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन आपके जाने से पहले आपके रब ने आपके हाथ पर दुनिया वालों के लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। इतना कमज़ोर नहीं है दीन कि कोई भी 600 साल के बाद आए और उसमें एक नया काम शुरू कर दे और वो दीन बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, न सिर्फ मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, वह अतममतु अलैकुम निअमती, ये नेमत के तौर पर मैं तुमको दे रहा हूँ और इसी नेमत के ज़रिए मैं तुमसे खुश हूँ, राज़ी हूँ। पता क्या चला? तारीख़ी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो 12 रबीउल अव्वल ईद मनाना कहीं साबित नहीं है। जहाँ तक शरई हैसियत है ईद मिलादुन नबी की, शरई हैसियत, शरीयत को सबसे पहले हम कहाँ तलाशते हैं? शरीयत को तलाशने की कसौटी कैसी है? सबसे पहले हम कुरान मजीद में देखते हैं कि क्या इस काम का हुक्म अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस में दिया है। कुरान में देखते हैं और पूरा 30 पारे कुरान पढ़ लीजिए, कहीं सबूत नहीं मिलता है, कहीं सबूत नहीं है। बाज़ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो मायदा उतरने के तौर पर दलील पकड़ी है, लेकिन वो शरीयत दूसरी है, इस शरीयत की बात चल रही है। बाज़ लोग और दूसरी दलीलें कुरान मजीद से देते हैं, लेकिन कहीं कुरान मजीद में इस बात का हरगिज़ इशारतन भी जिक्र नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन खुशी मनाना अच्छा है, सही है,
सवाब का काम है, हुस्ने नीयत के साथ करना चाहिए, सबूत नहीं है तो भी क्या हुआ, करना ये बेहतर काम है, ऐसा इशारे में भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है 30 पारों की शक्ल में, 114 सूरतों में से एक सूरत की एक आयत में भी इसका इशारा नहीं मिलता है। जबकि कुरान मजीद ऐसी किताब है जो जिंदगी के लिए हिदायत है। इस किताब में अगर नहीं है तो फिर हम कहाँ तलाश करेंगे? अल्लाह अकबर, भटकने के सिवा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं। जबकि कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, हुदल लिन्नास, सारी कायनात के लिए इसमें हिदायत की हर बात मौजूद है। ईद मिलादुन नबी का सबूत नहीं है तो शरीयत की रोशनी में सबसे पहले कुरान में नजर इंसान दौड़ाता है, कुरान में तो नहीं है। चलिए हदीस की बात, हदीस में भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी हदीस में ऐसा नहीं फरमाया है कि मेरी मिलाद मनाओ या सहाबा ने मनाया तो आप कुछ हुए, कहीं नहीं है। इसके बरखिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस जरूर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। अब इस दीन में दीन का नाम लेकर कोई नया काम शुरू करता है, फहुवा रद्दुन, अल्लाह शुरू करने वाले के मुंह पर मार देता है। उसके बरखिलाफ हदीस ऐसी है। अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसका सबूत हमारे हुक्म में नहीं है, यानी हमारे दीन में नहीं है, रद्द है, वो मरदूद है। हदीस में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। अगर हम और एक हदीस देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ये ऐसा काम जरूर है कि ये इंसान को सीधे रास्ते से गुमराह कर देता है, ये गुमराही डायरेक्ट जहन्नम तक पहुंचा देती है। अल्लाह अकबर। कोई रास्ता भटक जाए, कोई रास्ता भटक जाए, ड्राइवर है, ड्राइवर तो बहुत है माशाल्लाह हमारे दोस्तों में, रास्ता भटक जाने के बाद कोई अनजान आदमी से पूछता है भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, तो क्या बोलेगा, डायरेक्ट ये विखाराबाद को जाता है, बीच में कहीं रुकावट नहीं है, डायरेक्ट चले जाओ जहन्नम में। क्यों? ये बिदअत है। और इसका करने वाला डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जहां तक एक हदीस ताज्जुब है ऐसे लोगों पर, भाई एक तो मानते हैं कि कुरान हदीस में सबूत नहीं है, फिर कुरान हदीस से सबूत में देने की कोशिश करते हैं। भाई एक मानो, तुमने जब मान लिया कि कुरान हदीस में सबूत नहीं है तो फिर खींच कर देने की भी कोशिश तुम ही करते हो। कहते हैं अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या अल्लाह के रसूल बड़े हैं? दलील देखिए, आप भी खुश हो जाइए हमारे मुसलमान, अल्लाह ने इतना अच्छा दिमाग दिया और इस दिमाग के एनर्जी के तौर पर अकीदे तौहीद दिया। याद रखिए कोई इंसान मजबूत नहीं है, ईमान और अकीदे की एनर्जी उसको मजबूत करती है, उसके दिमाग को भी, उसके जिस्म को भी, उसके दिल को भी और उसके तमाम अमाल को भी, उसकी कामयाबी को। इंसान पैदाइशी लिहाज से मिट्टी से पैदा हुआ है, उसको मजबूत अगर कोई एनर्जी करती है ईमान और तौहीद, उसके बावजूद भी आप दलीलें देखें कितनी कमजोर। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ही पाक है। हम और आप में से अक्सर लोग तो गुनहगार हैं, कमजोर हैं। कहते हैं अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। किसी ने पूछा ना कि आप बड़े हैं या रसूल बड़े हैं? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचाओं में सबसे छोटे चचा थे, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ चंद दिन बड़े थे, चंद दिन बड़े। पूछा किसी ने आप बड़े हैं कि अल्लाह के रसूल बड़े हैं? तो कहने लगे बड़े तो अल्लाह के रसूल ही है। जवाब देखिए माशाल्लाह, चचा है, भतीजा है, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, नबी तो नबी है। जब बाहर वालों के लिए नबी है तो बेटी के लिए भी नबी, बीवी के लिए भी नबी, बेटे के लिए भी, चचा के लिए भी, हर एक के लिए नबी ना। कहने लगे बड़े तो नबी ही है, लेकिन पैदा मैं उनसे पहले जरूर हुआ, मेरी मीलाद उनसे पहले है। तो मेरी मीलाद उनसे पहले है, तो यहाँ लफ्ज़ मीलाद आ गया ना, तो नबी की मीलाद से पहले मेरी मीलाद है, तो देखो मीलाद का सबूत मिल गया। अरे अल्लाह के बंदो नादानो, मीलाद या अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है पैदाइश का दिन, पैदाइश का दिन।
इतना ही सबूत मिला। अब पैदाइश का दिन इसे ईद जोड़े, जुलूस जोड़े, ये कौन जोड़े? अब्बास जोड़े या पूछने वाले जोड़े? तुम जोड़े, तुम्हारा याश बादशाह जोड़ा है, मलिक मुजफ्फरुद्दीन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हदीस से भी इसका कहीं सबूत नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा किराम, याद रखो दीन के नाम पर अल्लाह के करीब करने वाले हर अमल को मैंने तुम तक पहुंचा दिया है, अल्लाह से दूर करने वाले हर अमल से मैंने तुमको बचने का हुक्म दिया है। दीन के नाम पर जन्नत के करीब करने वाले हर अमल को मैंने तुम तक पहुंचा दिया है, जहन्नम से दूर करने वाले हर अमल को मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। इससे बचो, जो करना है वो करो, और जिससे बचना है उससे बचो। सारा दीन मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। यहाँ तक के अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं उठाया था जब तक के दीन के नाम पर एक भी बात नबी के पास थी और नबी ने अब तक उसे नहीं पहुंचाया था। अल्लाह, इसीलिए हमारे असलाफ कहा करते थे कि दीन के नाम पर जो शरीयत अल्लाह के नबी हमें छोड़ कर गए हैं, ये इतनी वाज़ेह, इतनी रोशन, इतनी साफ, इतनी खुली हुई है कि इस दीन की रात भी दिन की तरह रोशन है। सुभान अल्लाह। तो हदीस में भी इसका कभी सबूत नहीं है। जब हदीस में, कुरान में इसका सबूत नहीं है, तो फिर हम क्यों कर इस ईद मिलादुन नबी को करते हैं? जहाँ तक अहले इल्म के अक़वाल की बात है, ये भी मैं आपके सामने पेश करूं कि बहुत से अइम्मा और बहुत से फ़ुक़हा, बहुत से उलमा ने इसकी तरदीद की है। सबसे पहले देखिए अल्लामा अब्दुर रहमान मग़रिबी रहमहुल्लाह। मैंने इंसाफ की खातिर किसी एक मसलक के उलमा का यहाँ इंतखाब नहीं किया है। इंसाफ की खातिर तमाम मसालिक के अइम्मा, तमाम मसालिक के उलमा, उनको मैंने यहाँ, उनमें से जो खास खास हैं उनके अक़वाल मैंने नकल किया है। मैं ये नहीं कहूँगा अब्दुर रहमान अल मग़रिबी रहमहुल्लाह ये किस मसलक के इमाम है, मैंने इंसाफ की गरज से सबको यहाँ नकल किया है। ये इंसाफ है, ये अदल है। वो कहते हैं मिलादुन नबी मनाना बिदअत है। इसी तरीके से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं मिलाद मनाना ये ईसाइयों का काम है। सबसे पहले ईसाइयों ने ईसा के नाम पर मिलाद मनाना शुरू किया, हमारे मुसलमानों ने देखा तो उनको अच्छा लगा, इन्होंने भी शुरू किया, जबकि ये शरीयत से इसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से अल्लामा नसीरुद्दीन अश-शाफ़ई, ये इमाम शाफ़ई के मानने वाले हैं, ये कहते हैं कि मिलाद ना मनाई जाए इसलिए कि सल्फ़ सालिहीन ने इसे इख्तियार नहीं किया है, तो हम कैसे क्या इख्तियार कर सकते हैं। अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं मिलाद मनाना किसी के लिए भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि यह बिदात है। ना रसूल ने मनाया, ना सहाबा ने मनाया, ना ताबईन ने मनाया, ना तबे ताबईन ने मनाया। इसी तरीके से इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं उम्मत के बाद वाले लोग उसी काम को अपनाने से भलाई में रह सकते हैं जिस काम को अपना कर भलाई में उम्मत के अव्वल लोग थे। और उम्मत के अव्वल लोग भलाई में किस काम को अपना कर, किस बात को अपना कर थे? सिर्फ किताब और सुन्नत को अपना कर भलाई में थे। तो उम्मत के बाद वाले लोग भी सिर्फ किताब और सुन्नत को अपना कर भलाई में रह सकते हैं। कौन कहते हैं? इमाम मालिक रहमहुल्लाह। तो पता ये चला कि ना उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, ना अइम्मा ने इसकी इजाज़त दी है, ना फुक़हा ने इसकी इजाज़त दी है। क्यों? अच्छे लोगों से इसका ताल्लुक ही नहीं है, अच्छे लोगों से इसका ताल्लुक ही नहीं है। इसीलिए जुलूस में आप गिनिए जाकर 1 2 4 चंद 6 7 8 कितने अच्छे लोग नजर आएंगे और कितने उछलने कूदने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ईद मिलादुन नबी की तकदीर ही में लिख दिया है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम नबी से मोहब्बत नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। नबी से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील यही है कि हम नबी की शरीयत को मजबूती से पकड़े, ऐसा पकड़े कि कोई इंसान मजबूती से दांत से रस्सी को पकड़ता है छूटने के डर से, इतना मजबूती से। ना तारीखी लिहाज से इसका सबूत मिला, ना शरई लिहाज से इसका सबूत मिला, तो लोग अब कहने लगते हैं नहीं जी नबी की मोहब्बत में करते हैं, इश्क रसूल में करते हैं। मोहब्बत भी नहीं करना नबी से, इश्क भी नहीं करना। जहाँ तक इश्क की बात है तो मैं कहूँगा इश्क ना ही करो तो नबी से बेहतर है, क्योंकि इश्क में
शहवत है और इश्क इंसान सिर्फ औरत से कर सकता है। कल भी मैंने मेरे छोटे से बयान में इसका तज़किरा किया है कि इश्क सिर्फ औरत से कर सकता है इंसान, और वो भी वो औरत नहीं जो माँ है, जो बहन है, जो बेटी है, जो फूफी है, जो खाला है, जो मर्द पर हराम है, बल्कि वो औरत जो बीवी बनती है, गर्लफ्रेंड में नहीं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो लोग कहते हैं कि मोहब्बत में मनाते हैं, दलील नहीं हो तो क्या हुआ, हम नबी से मोहब्बत नहीं कर सकते, कर सकते तो कुछ भी कर सकते हैं माशाअल्लाह। अगर नबी की मोहब्बत में कुछ भी कर सकते थे तो आप इंसाफ की दलील से बताइए, इंसाफ की नज़र से बताइए कि इस धरती पर तमाम इंसानों में नबी से मोहब्बत करने वालों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कौन हो सकते हैं? सीधा जवाब है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मिसाल मैं आपके सामने दूँ। हिजरत के मौके पर मक्का से अल्लाह ने निकलने का हुक्म दिया। जो सहाबी हमेशा नबी के साथ होते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में लिया। यहाँ पूरे मक्का वाले तलाश कर रहे, ऐलान हुआ सरदारान कुरैश की तरफ से, अबू बकर और मोहम्मद, हम कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों गायब हो गए हैं, इनको जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ कर लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। सुर्ख ऊँट की कीमत आज के मर्सिडीज के बराबर हुआ करती थी। एक दो सुर्ख ऊँट जिसके पास होते ना उस वक्त के ज़माने में, वो आज के दौर का करोड़पति होता था। क्या होता था? करोड़पति। और कितने ऊँट का मुतालबा किया गया है? बख्शिश इनाम 100 ऊँट। नबी और सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हो दोनों गारे सौर में जाकर छुपते हैं। गारे सौर में जाने से पहले हज़रत अबू बकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप यहीं रुकिए, मैं पहले गार में देखूं कि कोई नुकसान की चीज़ तो नहीं है। पूरा गार साफ किया, पूरा गार साफ किया और एक छोटा सा सुराख था, उसमें अपने पैर को घुसाया और कहने लगे या रसूल अल्लाह ताल, अब तशरीफ़ लाइए अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी अंदर गए, देखिए कि हज़रत अबू बकर एक टांग सुराख में डाले हुए हैं और दूसरे टांग को ऐसे मोड़ कर बैठे हुए हैं। कहने लगे या रसूल अल्लाह यहाँ मेरी गोद में आराम फरमाइए। नबी सो गए, नींद आई थी, रात भर जागे थे ना, वो पहरा दिए हुए थे मारने के लिए। बड़ा लंबा चौड़ा वाक़िया है। अल्लाह के नबी सो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जहरीले जानवर ने सुराख में से काट लिया। हज़रत अबू बकर टस से मस नहीं हो रहे कि मेरी जम्बिज ही नबी के नींद को नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। दर्द इतना हो रहा है, चूंटी काटती है तो महसूस होता है ना जहरीले जानवर ने काटा है, बर्दाश्त नहीं हुआ, सारा जिस्म साकित है, लेकिन आँख के आंसू रुकते नहीं है ना। इसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे मर्द हो या औरत, पत्थर दिल इंसान भी नहीं रोक सकता है। हज़रत अबू बकर की आंखों से आंसू जारी हुए और एक कतरा नबी के चेहरे पर गिरा। तब नबी को की नींद खुली और नबी ने कहा अबू बकर क्या बात है? अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या बताओ, किसी कमबख्त जहरीले जानवर ने काटा है, बर्दाश्त तो बहुत किया लेकिन ये आंसू नहीं रुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लाओ पैर लाओ। इतनी मोहब्बत किसी ने की है नबी से तो ये अबू बकर ने क्यों मिलाद नहीं मनाई है? क्या उनको मोहब्बत नहीं थी? ये मुनाफिकाना मोहब्बत थी अबू बकर की कि नबी की नींद को भी नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया। और आज तुम्हारी मोहब्बत उनसे भी ऊंची है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर से निकले, नबी के साथ मदीना रवाना हुए। नबी देख रहे हैं कि कभी अबू बकर सामने आते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं आते हैं, कभी पीछे आते हैं। अबू बकर ये क्या छोटे बच्चे की तरह पैर पैर में आ रहे हो, सीधा चलो, सफर का रास्ता है, मदीना बहुत दूर है। कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं सामने क्यों आ रहा हूँ आपको पता है? मैं जब दाएं जानिब से चलता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं सामने से कोई दुश्मन आप पर तीर ना बरसाए। फौरन सामने आता हूँ कि वो तीर मेरे सीने पर लगे, फिर बाएं भी इसी वजह से आता हूँ, पीछे भी इसी वजह से जाता हूँ कि जहां से भी तीर आए उम्मती को लगे, नबी को गजंद ना पहुंचे। इतनी मोहब्बत किसी ने की। अल्लाह अकबर। और मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा निकल रहा है अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत के सामने। मोहब्बत का नाम ना लो, वरना सहाबा मोहब्बत के नाम पर ऐसा करते हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये तो अबू बकर की बात हुई ना, आपके साथी थे बचपन के साथी खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी है। जंगे बद्र तक लोगों ने देखा कि ये मुसलमान थमने का नाम नहीं ले रहे,
اب مسلمان کبھی تھمتا ہے کیا؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا تھوڑی جائے گا، اس کو جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ دھوکہ دے دے کر لوگوں کو بلا بلا کر ابھی قتل کرنا۔ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، سب ان پڑھ ہیں، سب ان پڑھ ہیں، آپ ایک کام کیجئے، جتنے قراء ہیں، عالم ہیں، مسئلے مسائل سمجھانے والے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اس علاقے کو بھیجیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اس میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، 10 صحابہ چلے گئے۔ راستے میں ان نادانوں نے، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ انتظام کیا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر 100 تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ جب یہ پہاڑ کے دامن میں آئے ان پر تیر برسائے۔ سب شہید ہو گئے، 3 صحابہ بچے، اس میں سے ایک صحابہ کو ایک عورت نے قتل کیا، دوسرے صحابی کو برداشت نہیں ہوا، وہ سب کے سامنے آ گئے، تلوار لہراتے لہراتے وہ بھی زخمی ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اور عقبہ بن حارث اس کمبخت نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ جو لوگ ان کو پکڑ کے لائے تھے، یعنی کہ دھوکہ دے کر ان سے خرید لیا۔ اور یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے والا عقبہ بن حارث، یہ وہ شخص تھا جس کے والد کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، واسل جہنم کیا تھا۔ یہ لے جانے والے دھوکہ دے کے دوسرے تھے، لیکن جب قیدی بنا کر خبیب کو لے گئے تو عقبہ بن حارث نے دیکھا یہ صحابی، ارے اس نے تو میرے باپ کو قتل کیا جنگ بدر میں، خرید لیے اور خرید لے کر مکہ لے گئے اور قیدی بنا کر رکھے، بہت دنوں تک رکھے۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ، اجازت وقت نہیں دیتا ہے ورنہ تفصیل میں گفتگو کرتا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک یہ عقبہ بن حارث کے گھر میں رہنے کے بعد ایک دن سولی پر چڑھائے جانے کا وقت آ گیا، سولی پر چڑھائے جانے کا وقت آ گیا تو تمام مکہ والوں کو جمع کیا گیا، ایک درخت پر ان کو لٹکایا گیا اور لٹکا کر چھوٹے چھوٹے نیزے ان کو چبونے لگے، کہیں سینے کو چبے رہے، کبھی پیٹ کو، کبھی پیر کو، کبھی نازک جگہوں پر۔ انسان کتنا برداشت کرے گا؟ بھائی سیدھا سیدھا مار دو یا سولی پر پھانسی لٹکا دو، 2-3 منٹ لٹکے گا، تڑپے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ زخم دے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے زبان سے یہ بات نکلے کہ یہ کیسا اسلام ہے، کبھی کبھی اتنی بھی تکلیف ہوتی ہے، نہیں نکل رہی ہے۔ مومن کی زبان سے کبھی غلط بات نکل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سچا پکا مومن ہو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہ رہے ہیں، بہت دیر تک ایسی تکلیف دی گئی۔ آخر کار ایک دشمن نے زور سے سینے پر نیزہ چبایا اور چبا کر کہتا ہے خبیب اب شاید تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ میری جان چھوٹ جائے اور اس جگہ پر نبی آ جائے۔ کہنے لگے نادانو، میری محبت کا تم نے اتنا ہی دم سمجھا ہے؟ میری محبت کو تم سمجھو گے کافروں، مشرکوں، دنیا پرستوں؟ میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں چور چور ہو جاؤں، اگر اس کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھنے کی بات ہو جائے تو میں کہوں گا میرے جسم کے 100 ٹکڑے کرو لیکن میرے پیغمبر کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھو۔ میں اتنا بھی محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے کوئی اللہ اکبر؟ اس سے بھی زیادہ محبت کے نام پر کچھ بھی اس وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ محبت کیسی کرنا ہے اس کا ثبوت شریعت میں نہ ہو۔ اور جس دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے اس دین میں محبت کا حکم بھی ہے اور محبت کا طریقہ بھی ہے۔ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری سنتوں سے محبت کرے، جو میری سنتوں سے محبت کر کے مجھ سے محبت کرے گا وہی شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو نبی نے کہا ہے کرو مجھ سے محبت، منع نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ کیا؟